Thank you, Alexa, for recording it. Okay, a very good morning to everyone, a very good afternoon, and a very good evening. चलिए आइए शुरू करते हैं without any further time, wasting of time. Let's get started. What we are interested in is we are continuing our journey of current electricity. This is the 9th episode, but this will be actually the 11th video. Fine, and we have to talk about combination of resistors, and today we'll talk about series combination. Fine, let's get आगे बढ़ते हैं. Now let's just recall Ohm's law, what we had studied in Ohm's law. What Ohm's law means, the way we will remember to use it for numericals. हम लोग को एग्जाम में लिखने का अलग तरीका है, और to solve numericals we'll go through a different method. What is the potential drop across a resistor is equal to the product of the resistance and the current flowing through it. ये एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कि find the value of current. What is the value of this current? Find. Now look over here. This is a conductor of resistance 10 ohm. This is a conductor of resistance 10 ohm. Let this end be A, let this end be B. तो आप खुद बता सकते हो इस एंड का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है. पोटेंशियल डिफरेंस V कितना होगा, डेल्टा V, और इसी डेल्टा V को हम लोग बोलते हैं VA minus VB. Why VA minus VB? Because we know the fact that current flows from higher potential to lower potential, and if the current flows from higher potential to lower potential, that means the point A has to be at higher potential and point B has to be at lower potential. इसलिए जब हम डिफरेंस निकाल रहे हैं तो VA माइनस VB कर रहे हैं, और ये कितना हो जाएगा, +15 माइनस +5, ये हो जाएगा +15 माइनस +5, मतलब 15, ये हो जाएगा 10 वोल्ट. जो V का पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू आया है वो है 10 वोल्ट. व्हाट इज द रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज 10 ओम. समझ में आया? सो पोटेंशियल ड्रॉप, ओम्स लॉ क्या बोलता है? ओम्स लॉ सेज दैट the potential drop across the resistor is actually is equal to resistance times the current flowing through it. अगर एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है, करंट I फ्लो कर रहा है, उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप डेवलप होगा वो होगा VRI. दैट मींस RI is equals to V. दैट मींस I is equals to V by R. दैट इज I is equals to V कितना है? V है 10, RB है 10, दैट मींस आंसर विल बी 1 एम्पियर. आंसर. बात समझ में आया? क्लियर है? इजी, conceptual easy है. Okay, now let's talk about the real topic, the real content. Okay, just try to understand, समझने की कोशिश करो बस. कि सपोज आपके पास कंडक्टर है of resistance 10 ohm only, of 10 ohm only. आपके पास इनफाइनाइट सप्लाई ऑफ रेजिस्टर्स है जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है. मतलब कि आपके पास बस 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ना ही उससे कम ना ही उससे ज्यादा. Okay, fine. I'll just turn off the video. Sorry, I'll just turn off the video from here. Okay. Now, the thing is, suppose you want a resistor of resistance 20 ohm or 40 ohm or 5 ohm or 2.5 ohm or 25 ohm. So what to do? क्या
किया जाए, क्योंकि आपके पास एक रेजिस्टर है जिसका वैल्यू है 10 ओम। ये 10 ओम से आप 20 ओम कैसे जाओगे, 40 ओम कैसे जाओगे, 5 ओम, 2.5 एंड 25 ओम। इज इट पॉसिबल दैट बाय सम मीन्स, क्या ऐसा कोई तरीका है जिसको मैनिपुलेट करके हम 10 ओम रेजिस्टेंस यूज करके ये अचीव कर सके? तो आंसर इज यस, देयर इज अ वे आउट, एंड द वे आउट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, समझ में आया? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? ओके, सो इन ऑर्डर टू have a desired resistance in a circuit, sometimes we have to connect two or more resistors together. They can be combined in three ways. First is in series, second is in parallel, and the third one is both series and parallel. So हम लोग का ऑब्जेक्टिव होगा ऑप्शन ए पढ़ना, ऑप्शन टू पढ़ना। एक बार हम लोग ऑप्शन ए और ऑप्शन टू पढ़ लेते हैं, the third option is very combination of these two things. Third option we don't actually have to study, we just have to study this and this. Third option is a consequence of this. बात समझ में आया? तो आपको यहाँ पे समझना है कि हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है? ओके फाइन, चलो बढ़िया। नाउ ओके, the today's discussion is series combination. Today's discussion is of series combination. So for this case, पहले समझ लो कि सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब होता क्या है। पहले समझ लो सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है। सुनो पहले, सपोज यू हैव थ्री रेजिस्टर्स, सपोज यू हैव थ्री रेजिस्टर्स, ये रेजिस्टर वन ऑफ रेजिस्टेंस R1, ये इसका एंड, इसका एंड। यू हैव अनदर रेजिस्टर, let us name this resistor 2 of resistance R2. Let us use another resistor of resistance R3, बात सुनो पहले शांति से, and this is the third resistor, ठीक है? ओके, ये पहला रेजिस्टर है, ये दूसरा, ये तीसरा। नाउ ये हो गया पहला रेजिस्टर का एंड ए, एंड बी, ये दूसरा सी, ये डी, ये ई, ये एफ। अब ध्यान सुनो पहले। नाउ इफ द रेजिस्टर्स आर सो कनेक्टेड, सुनो बात सुनो, समझ सुनो, अगर ये रेजिस्टर्स को ऐसे ज्वाइन किया गया है, एज इफ if this is the first resistor, this is the first resistor of resistance R1, and this is the end A, this is the end B. One end of the resistor is connected to the second resistor. ये मान लीजिए आपका resistor second है of resistance R2, such that the end C is connected to the end B. End C is connected to the end C, B. और इसका जो दूसरा end है, which is D, this is connected to the end, one of the end of the third resistor. ये हो गया R3. Fine. And this is the point F. And then this is finally connected to a battery, is connected to a battery of potential difference V, of potential difference V. आपको बात समझ में आया? अगर रेजिस्टर्स ऐसे कनेक्टेड है कि वन एंड ऑफ द रेजिस्टर इज कनेक्टेड टू द वन ऑफ द एंड ऑफ द सेकेंड रेजिस्टर, one end of the resistor R2 is connected to the other end of the resistance R1, and one end of the resistor R3 is connected to the another end of resistor R2, then such a combination is called series combination. बात समझ में आया? ऐसा combination को कहा गया है series
कॉम्बिनेशन। फाइन, मतलब कि दोनों हाथ पकड़ के ऐसे खड़ा है, ये बंदा ऐसे खड़ा है, मान लो ये पर्सन ए है, ये अपना हाथ, इसका हाथ पर्सन बी पकड़ा हुआ है ऐसे, इसका हाथ दूसरा कोई पकड़ा हुआ है, पर्सन सी ऐसे पकड़ा हुआ है, इसका हाथ कोई दूसरा पर्सन डी पकड़ा हुआ है, सच दैट एक दूसरे का हाथ, ये इसका हाथ पकड़ा है, ये इसका, ये इसका, ये इसका, ऐसे कुछ पकड़ा हुआ है। एंड फाइनली जो दो फ्री एंड्स बचा हुआ है, दिस इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, दिस इज कनेक्टेड टू अ बैटरी। एंड जब when resistors are connected in such a manner, we say it's a series combination, we say it's a series combination। ओके, इतना आपको समझ में आ चुका होगा। फाइन, एंड नाउ इन सीरीज कॉम्बिनेशन में है, अगर यहां से मान लीजिए करंट आई फ्लो कर रहा है, करंट आई फ्लो कर रहा है, तो इस सिचुएशन में हम लोग बोलते हैं कि, अब सुनो बात को, ये तीनों रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस R1, R2, R3 मिलकर कितना करंट प्रोड्यूस किया, आई करंट प्रोड्यूस किया व्हेन अ बैटरी ऑफ पोटेंशियल V was connected। फाइन, अब हम लोग इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट। क्या बना रहे हैं, इक्विवेलेंट सर्किट, मतलब कि जो, ध्यान सुनना, जो रोल ये तीनों रेजिस्टर्स R1, R2, R3 तीनों मिलकर कर रहा था, the effect or the current which they produce together, it can so happen that a single resistor when connected to a battery of potential difference V can produce the same current I, and this resistance is called R equivalent। समझ में आया? जो रोल ये तीनों मिलकर प्ले कर रहा था, जो रोल ये तीनों मिलकर प्ले कर रहा था, R1, R2, R3 मिलकर करंट आई प्रोड्यूस कर रहा था, वो काम ये रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट अकेला कर दे रहा है। सो दिस R इक्विवेलेंट is called equivalent resistance of R1, R2, R3 in series, मतलब कि बात समझ में आया? और कुछ नहीं बोलेंगे हम, बात समझ में आया? that means the role, I'll repeat myself, the role which these three when combined together, the same role this plays alone, hence it is called equivalent resistance of R1, R2, R3 in series। and ये जो R equivalent का वैल्यू होता है, R equivalent का वो होता है simply R1 plus R2 plus R3। fine, that means if this was value of 1 ohm, this was 10 ohm, this was 100 ohm, so the result would be, this would be 1 ohm plus 10 ohm plus 100, that means 1 ohm answer। बात समझ में आया? This is what you will have to remember। इसका derivation नहीं है, but this is what you'll have to remember। fine, okay fine। चलो, यहां पे हम आपको समझाएं कि सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब होता क्या है, एंड सीरीज कॉम्बिनेशन में होने से जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है। नाउ विल डू अ सीरीज का डिराइवेशन।
डेरिवेशन मतलब ये जो फॉर्मूला हम लोग टाइप किया था ना, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इसको प्रूफ करेंगे ये एक्चुअली में होता है कि नहीं होता है, एंड ये एक्चुअली में होता है. विल चेक दिस आउट. फाइन, लेट्स डू इट. ओके, so what do we mean by series combination? What do we mean by series combination? When three resistors of resistance R1, R2, R3 are connected hand in hand. Resistance R1 का one end is connected to the resistance R2 and R2 का another end is connected to resistance R3. जिसे इसे series combination. ठीक है, ठीक है. Now look over here. Let us assume that the battery has potential difference V. The battery has potential difference V and it produces a current I in the circuit when these three resistance are connected in series. ये बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है और ये बैटरी करंट I प्रोड्यूस किया सर्किट में जब ये तीनों रेजिस्टर्स R1, R2, R3 को कनेक्ट किया गया है सीरीज कॉम्बिनेशन में. फाइन, फाइन. अच्छा, so one end is connected to A, another end of the battery is connected to V. So can you tell me what is the potential difference of battery, potential difference of battery कितना है बोल सकते हैं? वो है सिंपली V. और वो कितना है एक्चुअली में बोल सकते हैं? ये पॉइंट A है, ये पॉइंट D है, तो हम बोल सकते हैं VA माइनस VD. VA माइनस VD. ठीक है, फाइन. अच्छा, ओके. अब जब ये करंट आई फ्लो कर रहा है यहां से आई आएगा, यहाँ पे करंट आई आएगा, और यहाँ पर करंट को सिर्फ एक ही रास्ता है, करंट के पास सिर्फ एक रास्ता है यहां से जाने का. तो सेम करंट आई विल फ्लो थ्रू द रेजिस्टेंस R1. यहाँ पे जब आएगा द सेम करंट आई विल आल्सो फ्लो थ्रू रेजिस्टेंस R2, एंड यहाँ भी द सेम करंट आई विल फ्लो थ्रू रेजिस्टेंस R3. बात समझ में आया? Since the current has only one path, एक ही रास्ता है उसके पास, तो वही से होके जाएगा ना. That means the current through same resist, all the resistance is same. The current through all the resistance is same and is I. ये बात क्लियर है? पहला पॉइंट, ठीक है. So उस केस में क्या हम लोग बोल सकते हैं पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1 कितना होगा? अक्रॉस R1 बोल सकते हैं V1. मान लेते हैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 हुआ, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 और R3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V3. देखिए V है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द, देखो एक बार सुनो, बस सुन लो, समझ लो, भूल जाओ, पर एक बार सुन लो, डेरिवेशन एग्जाम में नहीं पूछेगा. V is the potential drop of the battery. V1 is the potential drop across resistance R1. V2 is the potential drop across the resistance R2. V3 is the potential drop across the resistance R3. ठीक है, यहां से हम बोल सकते हैं V1 हो जाएगा, ओम्स लॉ क्या बोलता है, अगर एक सिंगल रेजिस्टर है तो रेजिस्टेंस इनटू करंट फ्लोइंग थ्रू इट. पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R2 कितना होगा, उसको मान ले रहे हैं V2. ये हो जाएगा R2 इंटू आई. पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R3 कितना होगा, इसको V3 मान ले रहे हैं, इसका वैल्यू हो जाएगा R3 इंटू आई. ठीक है, अब ये जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस R1 है, R2 है, R3 है, ये एक्चुअली आया कहां से? ये तो सारा बैटरी सप्लाई किया है ना, ये तो सारा बैटरी सप्लाई किया है. तो क्या हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि जो V है एक्चुअली में, जो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी है इज एक्चुअली इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3. बात समझ में आई कि नहीं? देखो V1 प्लस V2 प्लस V3, क्लियर है? ये जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1 हुआ, जो R2 है, वो कहां से आया एक्चुअली में? वो आया आपका बैटरी से तो आया. तो ये एक इक्वेशन बना आपका. फाइन,
फाइन। तो यहां से आप बोल सकते हो क्या कि, क्या बोला, छोड़ो ना इसको, अभी बोलना नहीं होगा आपको। अब सुनो, अब कहानी सुनो। अब इसका हम लोग फिर से इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट कहने का मतलब है कि जो रोल, ये फ्रेज को ध्यान से सुनना, जो रोल ये तीनों रेजिस्टर्स R1 R2 R3 मिलकर प्ले कर रहा था, वो रोल एक अकेला बंदा कर सकता है। वो रोल क्या है कि जब इसको हम लोग एक बैटरी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, इसके अगेंस्ट कनेक्ट करते हैं, तो करंट कितना प्रोड्यूस करेगा? I। इसका वैल्यू कितना होगा? इसको बोलते हैं हम लोग आर इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं? आर इक्विवेलेंट। ठीक है। तो इस सिचुएशन में, इस सर्किट में, इस सर्किट में अगर हम ओम्स लॉ अप्लाई करें तो हम क्या बोल सकते हैं? ये जो आर इक्विवेलेंट है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर इक्विवेलेंट, वो कितना हो जाएगा बोल सकते हैं? V इज इक्वल्स टू आई आर इक्विवेलेंट। क्योंकि यहां से तो करंट आई ही फ्लो कर रहा है, और इसका बैटरी कितना है? यही है, और तो कुछ है नहीं पोटेंशियल ड्रॉप। जो बैटरी का पोटेंशियल ड्रॉप है वो सारा इसके अक्रॉस हो जाएगा, इसके अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि और कोई रेजिस्टर तो है नहीं। ये हो गया। अब आपके पास क्या है? ये एक वैल्यू है, ये तीन वैल्यूज है, इसको इसमें डाल दो, इसको भी इसमें डाल दो। हम बोलते हैं V की जगह लिख देंगे I इंटू आर इक्विवेलेंट, V1 की जगह लिख देंगे I इंटू R1, V2 की जगह I इंटू R2, V3 की जगह I इंटू R3। अब देखो, यहां से आई आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, आई कॉमन ले लो तो बच जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। आई आई कैंसिल हुआ, तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू आया R1 प्लस R2 प्लस R3। देखो बात समझ में आई कि नहीं? आंसर। ये डिराइवेशंस नहीं चाहिए आपको, पर जब तक अगर हम ये डिराइवेशन नहीं कराते तो आपको दो चीज समझ में नहीं आता। यहाँ पे पहला चीज क्या है कि यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है, करंट इज सेम थ्रू आउट, इज सेम, करंट इज सेम थ्रू ईच रेजिस्टर। हर एक रेजिस्टर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, प्लीज याद रखो, इन सीरीज कॉम्बिनेशन द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर इज सेम। इन सीरीज कॉम्बिनेशन द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर इज सेम। ये बात दिमाग में बैठना चाहिए। अगर हम ये डिराइवेशन नहीं कराते तो ये बात आपके दिमाग में नहीं बैठता कि करंट थ्रू ईच रेजिस्टर इज सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन, एंड the potential drop of the battery is actually equal to the sum of the individual potential drop across each resistor। V क्या है? बैटरी का पोटेंशियल ड्रॉप है। V1 क्या है? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1। V2 क्या है? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R2। V3 क्या है? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R3। जो बैटरी का पोटेंशियल ड्रॉप है इज एक्चुअली इक्वल टू द सम एडिशन ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडिविजुअल रेजिस्टर्स। बात समझ में आया? ये दो पॉइंट आपको याद रखना है, ये वाला एक पॉइंट एंड ये वाला एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए इधर आइए, ये तो हो गया, हटाओ इसको। अब यहाँ पे बस कुछ की पॉइंट्स है। शांति, अगर आपने था वो समझा होगा यार। दीज आर द की पॉइंट समरी, सुन लो। इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट थ्रू ईच रेजिस्टर इज सेम। ये बात हम लोग देख चुके हैं कि अगर यहां से करंट आई, बैटरी से करंट आई फ्लो किया है, तो हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस करंट आई ही जाएगा। हर एक रेजिस्टर R1 R2 R3 है, उसका करंट सेम होगा, दैट इज आई। ठीक है। नेक्स्ट, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज डिफरेंट। हाँ, ऑब्वियसली डिफरेंट है, एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। क्योंकि हम लोग पता है अगर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस R1 बात करें तो हो जाएगा I इंटू R1। अगर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर R2 देखें तो V2 हो जाएगा I इंटू R2, एंड V3 हो जाएगा I इंटू R3। यहां से हम लोग को साफ साफ दिख रहा है कि जो पोटेंशियल ड्रॉप है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। यहां से क्या दिख रहा है हम लोग को? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। क्लियर है ना? ओके।
the potential drop of entire circuit is equal to the sum of potential drop of the individual resistor. अगर ये पोटेंशियल ड्रॉप का बैटरी V है तो V इज एक्चुअली इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये बोला गया है। ठीक है, समझा चुके हैं? फाइन। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। अभी किया हम लोग डेरिवेशन किया है कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो R इक्विवेलेंट होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। फाइन, वी जस्ट डिड दिस, नो इश्यूज, फाइन। अब एक सिंपल सा बात सुनो कि अगर R1 का वैल्यू हम 1 ले लें, R2 का वैल्यू 2 ओम ले लें और R3 का वैल्यू 5 ले लें, उस केस में R इक्विवेलेंट कितना आएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3, जो हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 5, तो आंसर आ जाएगा 8 ओम। 8 ओम। अब एक बात ध्यान सुनो, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इंक्रीजेज, ये इंपॉर्टेंट है, इंक्रीजेज। देखो आंसर कितना है? 8 ओम आया। ये जो 8 ओम आया वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस 1 ओम से भी बड़ा है, 2 ओम से भी बड़ा है, 5 ओम से भी बड़ा है। मतलब कि जो आंसर आएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में वो सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा, सबसे ज्यादा होगा कंपेयर टू ऑल द इंडिविजुअल रेजिस्टर्स। 1 2 5, सबसे बड़ा कौन है? 5। पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया 8, वो इससे भी बड़ा है। फाइन, यहां बोल रहे हैं द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन इज मोर देन द लार्जेस्ट ऑफ ऑल रेजिस्टेंस इन सीरीज। बात समझ में? यहाँ 1 ओम, ये 2 ओम, ये 5 ओम, सबसे लार्जेस्ट कौन है? ये है लार्जेस्ट, ये है लार्जेस्ट 5 ओम। बट जो R इक्विवेलेंट आया है वो 8 ओम है, विच इज मोर देन द लार्जेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस 5 ओम। इससे ज्यादा अब हम कुछ नहीं कर सकते आपके लिए, इससे अच्छा तो समझाना पॉसिबल नहीं है। अगर नहीं समझ में आया तो शांति से बैठ के फिर से एक बार देखो इसको। करंट थ्रू सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट इज सेम थ्रू आउट ईच रेजिस्टर, खत्म। पोटेंशियल ड्रॉप डिपेंड करेगा रेजिस्टर पे, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। कितना हो जाएगा? I into R1, I into R2, I into R3, depending upon which resistor we are talking. Sum of all the potential drop will actually be equal to the supply voltage drop of the battery. Sum of all the potential drop is equal to supply voltage drop. R equivalent करो, रटवा दिया आपको, R1 plus R2 plus R3, डिराइव भी करके दिखा दिया। एंड ये दोनों कि अगर सीरीज कॉम, इसका मतलब कि आप रेजिस्टर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में कब डालोगे? जब आपको रेजिस्टेंस इंक्रीज करना होगा। whenever you have an option to increase the resistance, we will do it in series combination, fine, whereas we'll do it in later on। हटाओ इसको, बहुत बकवास कर लिया हम। ओके, लुक ओवर हियर। if n resistors of resistance R1 R2 R3 R4 dot 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 Rn are connected in series, question 1, write the expression for equivalent resistance। solution बहुत इजी है, क्या बोला है? सब सीरीज में है तो R इक्विवेलेंट होगा एल्जेब्रिक एडिशन, कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस डॉट 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 प्लस Rn। बात खत्म, ये तो हो गया। क्योंकि हम लोगों को पता है सीरीज में सब एल्जेब्रिक एडिशन होता है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है इज एक्चुअली द सम ऑफ एल्जेब्रिक एडिशन ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। खत्म, solution 1। Number 2, how will the expression of equivalent resistance change when all the resistance become equal? All the resistance become equal कहने का मतलब है यहाँ पर here R1 becomes equal to R2 is equals to R3 is equals to R4 is equals to R5 dot 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 is equals to Rn। सारे रेजिस्टेंसेस इक्वल हो गए, मान लेते हैं इक्वल टू R से इक्वल टू R। उस केस में हम बोल सकते हैं R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R प्लस R प्लस R प्लस R
प्लस डॉट 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 कितना कितना रेजिस्टेंस है आपके पास, एन है तो बोल सकते हैं एन टाइम्स। अब कोई चीज को आप एन टाइम्स ऐड कर रहे हो, इसका मतलब उसी को एन से मल्टीप्लाई कर दो, बस हो गया, खत्म कहानी। बात समझ में आया? दैट्स इट, फिनिश। बारिश भी शुरू हो गया। इज इट फाइन? कोई चीज को आप एन टाइम्स ऐड कर रहे हो, इसका मतलब उसको एक ही चीज को एन से मल्टीप्लाई कर दो, एज सिंपल एज दैट। आवाज सुनाई दे रहा है आपको बारिश का? टू रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस R1 R2 कनेक्टेड इन सीरीज, आर इक्वल कितना होगा? सिंपली आर इक्वल हो जाएगा R1 प्लस R2, बस खत्म, कुछ नहीं पूछा। फाइंड आर इक्विवेलेंट, हो गया, क्या पूछेगा? नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपका 2018 में आया था। क्या बोला है? यू हैव थ्री रेजिस्टर्स ऑफ वैल्यू 2 ohm, 3 ohm and 5 ohm. How will you join them so that the total resistance is more than 7 ohm? How will you join them so that the total resistance is 7 ohm? बस सॉल्यूशन तो बहुत इजी है। आपको क्या चाहिए? आपको 7 ओम से ज्यादा चाहिए, आपको 7 ओम से ज्यादा चाहिए। आपको मतलब कि रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन जो है वो इन रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना है, रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना है। सीरीज में ऐड कर दो, इन सीरीज। ड्रॉ द डायग्राम। क्या होगा? ऐसे डायग्राम होगा, ये हो गया 2 ओम, ये हो गया 3 ओम, ये हो गया 4 ओम, 5 ओम। इसको नाम दे रहे हैं R1, R2, R3। ठीक है, ये हो गया। ड्रॉ द डायग्राम एंड कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हियर R1, R2, R3 are in series, are in series। अगर सीरीज में है तो R इक्वल कितना होगा? सिंपली R1 प्लस R2 प्लस R3, दैट मींस इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 प्लस 5 विच इज इक्वल्स टू 10 ओम। आप नोटिस करो एक चीज, हम लोग जब ऐड कर रहे हैं तब यहाँ पे यूनिट नहीं लिख रहे हैं, लास्ट में यूनिट लिख रहे हैं, आंसर खत्म। फाइन, we'll keep this much for today, we'll keep this much for today। so the homework, अच्छा, let's try this part, let's try these two questions। आपके पास 10 ओम का रेजिस्टर है, how will you achieve 20 ohm and 40 ohm? homework। चलो, thank you so much, have a nice day ahead, it was fun teaching you all, we'll meet again, and finally good night। बारिश भी होना शुरू हो गया बहुत जोर का। चलो बाय, सायोनारा।